Grace Sangramjit Dasa to all of you, a dedicated monk from ISKCON and the current in charge of ISKCON Kotia. His Grace brings a wealth of knowledge and experience from both spiritual and corporal worlds. His Grace Sangramjit Ji holds a B.Tech degree and has enriched his technical expertise with a decade of valuable experience in IT sector, working with prestigious organizations like Cognizant and Wells Fargo. His transition from corporate world to spiritual enlightenment has empowered him to blend pragmatic knowledge with spiritual insights. An accomplished preacher and counselor, our guest speaker today specializes in elucidating the profound teachings of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam with particular focus on youth and congregational guidance. His sessions are renowned for clarity, depth, and applicability in everyday life. Additionally, His Grace Sangramjit Ji visits the guest faculty to many renowned schools of the capital city, where he passionately imparts lessons on moral values, nurturing the leaders of tomorrow. In today's session titled Yoga for Life and its Importance in Career Building, our guest speaker will explore how the principles of yoga extend beyond physical postures and can be integrated in shaping the successful and fulfilling career. Expecting a transformative talk that will offer both practical advice and spiritual guidance to navigate the challenges of modern professional landscapes, please join me in welcoming His Grace Sangramjit Ji for the talk. Sir, please. Hare Krishna, thank you very much, all the students, as well as I'm very much thankful to Principal Sir, as well as all these members of DAV Public School. So it's my pleasure to be here, and today is the Yoga Day. So on this auspicious occasion of Yoga Day, we will discuss that how implementing this yoga we can be success in our life, right? So how many if you want to be success in your life? कितना बच्चे हैं जो आपके लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं? कितना बच्चे? सब कौन सा फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं आप? कौन सा फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं? ठीक है, ओके। एक बार क्या हुआ, एक टीचर ने क्लास में एंट्री किए और एंट्री करने के बाद बच्चों को पूछे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव राइड मे बी बाइसाइकिल और स्कूटी और मे बी सम व्हीकल। तो मैं भी पूछना चाहता हूँ कितना बच्चे हैं जो आप स्कूटी चलाते हैं, या हो सकता है साइकिल चलाते हैं, या हो सकता है कार चलाते हैं? कितना बच्चे? सब साइकिल चलाते हैं। ठीक है, आगे जाने के बाद आप कार चलाएंगे, स्कूटी भी चलाएंगे। कितना बच्चे स्कूटी चलाते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आया कि बच्चे जो स्कूटी में या कार में या आपके साइकिल में जो ब्रेक है, ये ब्रेक किस लिए है? किस लिए ब्रेक है? आप चलाते हैं बाइक, स्कूटी चलाते हैं? नहीं, साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल में ब्रेक क्यों है? क्यों? यस, क्यों है स्कूटी? यस, ब्रेक क्यों है? किसके लिए ब्रेक है? यस, टू स्टॉप द साइकिल। ठीक है, और कोई किसी का और कुछ आंसर है? यस, ओके, ठीक है, कोई अगर ऑब्स्टेकल्स आया तो स्टॉप कर सकते हैं। यस, एनीवन कैन स्पीक? क्यों साइकिल में ब्रेक है? यस, यस, प्रिवेंट एक्सीडेंट। ठीक है, और कुछ? यस, टू रिड्यूस द स्पीड। यस, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही उस क्लास में भी बच्चे ऐसे ही आंसर दिए कि स्पीड को ब्रेक करने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए, ये सब बोले। और उसके बाद टीचर के आंसर क्या था आपको पता है? टीचर का आंसर था गाड़ी को स्पीड चलाने के लिए ब्रेक है। गाड़ी को स्पीड चलाने के लिए ब्रेक है। मान लीजिए आपके साइकिल में या आपका स्कूटी में या कार में अगर ब्रेक नहीं होता, अगर ब्रेक नहीं होता तो स्कूटी क्या हम लोग 20 या 40 स्पीड में चला सकते? तो हम लोग को लगभग ऐसे पैदल में चला के जाना पड़ता शायद। तो इसीलिए देखिए गाड़ी में ब्रेक इसीलिए है क्योंकि हम लोग गाड़ी को तेज रफ्तार में चला सकते हैं। सही है कि नहीं?
तो लाइक दैट हमारे लाइफ में अगर हमारा नियंत्रण है, लाइफ में अगर हमारा नियंत्रण है, if we have control on ourselves, then obviously we can progress in our life very fast. सही है कि नहीं? अगर जीवन में हमारा खुद का नियंत्रण रहेगा तो फिर जीवन में बहुत तेज रफ्तार में हम आगे बढ़ सकते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन आज के टाइम में ये जो डिसिप्लिन का बात हम करते हैं या खुद के ऊपर नॉलेज लाना का बात करते हैं, तो बच्चे सोचते हैं तो बहुत बोरिंग का काम है, ये कौन करेगा यार, ये कौन करता है। लेकिन देखिए जिंदगी में जितने व्यक्ति सक्सेस है ना, खुद के ऊपर कंट्रोल रहता है, खुद के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है। अभी देखेंगे, वो वीडियो चला सकते हैं क्या, धोनी वाला वीडियो? देखिए MS धोनी क्या कह रहे हैं, जिंदगी में सक्सेस लाने के लिए क्या जरूरी है। Success skills you teaches you to be humble in mind. If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. Because mind is the most powerful thing. We all think it's a physical. I am tired, I can't run. It's the mind that is telling the body you can't run. It's like the hard work, the discipline, the honesty. It's the mind that is much more stronger. And these are the things that you keep teaching the youngsters. समझ रहे हैं कि एक्चुअली जीवन में कौन सा चीज सबसे जरूरी है? खुद के ऊपर कंट्रोल। ठीक है, तो आज का दिन है योगा डे। तो जब हम योगा का बात करते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? योगा का बात करने से आपके दिमाग में यही आता होगा, रामदेव जी। रामदेव जी ही आ रहा है और कपालभाति आ रहा है। सही है कि नहीं? 90% बच्चों का यही आता होगा ना कि कपालभाति कैसे करेंगे, योगा कैसे करेंगे, रामदेव जी का फटाफट आता होगा। लेकिन आज हम देखेंगे भगवत गीता से योगा के बारे में कृष्ण ने क्या कह रहे, व्हाट इज योगा। ठीक है, तो हम लोग भगवत गीता में जाएंगे और उस श्लोक उच्चारण करके देखेंगे भगवत गीता में कृष्ण ने किसको योगा कहते हैं। ठीक है, ये भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 48 नंबर श्लोक है। ठीक है, तो मैं पहले उच्चारण करता हूं और उसके बाद आपको उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है, एवरीवन इज रेडी? ठीक है, तो जुगस्त कुरु कर्माणि। नहीं, ये DAV स्कूल का साउंड नहीं है, थोड़ा आवाज अच्छे से आवाज आना चाहिए। आप लोग ब्रेकफास्ट लिए? क्या ब्रेकफास्ट लिए हैं? क्या ब्रेकफास्ट लिए? चूड़ा। ठीक है, क्या ब्रेकफास्ट लिया आप लोग? क्या ब्रेकफास्ट लेके आए? इडली। स्कूल में लिए कि घर से लिए थे? अच्छा ठीक है, तो ब्रेड जाम का आवाज निकलना चाहिए। ठीक है, योगस्थ कुरु कर्माणि। यस, ये चूड़ा का आवाज है। ठीक है। संगत्वक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध समभूत्वा सत्वं योगोच्यते। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन में जाएंगे। एनीवन कैन रीड दिस ट्रांसलेशन? यस, एनीवन? दिस इंग्लिश? यस। Perform your duty in the world, O Arjuna, avoiding all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. यस, ठीक है, तो कृष्ण ने यहाँ पे कह रहे हैं, एक्चुअली हम लोग लिखे भी है लेकिन थोड़ा ब्लैक आ रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। एनीवे, तो कृष्ण ने यहाँ पे कह रहे हैं, आप बैठ सकते। तो कृष्ण ने यहाँ पे कह रहे हैं, हम लोग जब कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, हम लोग जब कोई भी कार्य करते हैं और वो कार्य सेल्फलेसली करते हैं, ठीक है, सेल्फलेसली करते हैं, कोई सेल्फिश डिजायर नहीं है, ठीक है, सेल्फलेसली करते हैं विद द नॉलेज एंड डिवोशन, ठीक है, ज्ञान और विज्ञान के साथ जब हम करते हैं ना, वो कार्य को क्या बोलते हैं? योगा। कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, वो कार्य किस चीज के लिए हम कर रहे हैं? ज्ञान भी है और उसके साथ साथ हमारा डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है विद द लव वी आर डूइंग, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? योगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, आपके मम्मी, आपका क्लास कितना बजे स्टार्ट होता है? 6:30 बजे। तो ठीक है, वो कितना बजे उठ जाती है? 5:30 बजे।
और 5:30 बजे उठ के खाना बनाते हैं, फिर आपका ड्रेस ठीक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी कर रहे हैं उनका कोई सेल्फिश डिजायर है कि बच्चा जब जॉब कर लेगा ना उसके बाद हर महीना मुझे 5,000 सैलरी देगा, ऐसा है? कोई एक्सपेक्टेशन है? नहीं। और उसके साथ साथ जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं कि नहीं? जो खाना बनाते हैं, मम्मी अगर खाना बनाए और कोई खाना बनाते हैं तो किसका खाना सबसे अच्छा लगता है? मम्मी का खाना ना, इसीलिए क्योंकि खाना में प्रेम है, ठीक है? तो इसीलिए देखिए कोई भी कार्य अगर हमारे जीवन में वो कार्य को सेल्फलेसली करते हैं और उसके साथ साथ हमारा ज्ञान है और डिवोशन है तो उसको क्या कहते हैं? योगा, ठीक है? तो आज देखेंगे हमारे जीवन में जो सक्सेस होने के लिए हम चाहते हैं, सक्सेस का मैं आज मंत्र हम लोग देख के जाते हैं, ठीक है? सक्सेस का मंत्र हम लोग देके जाएंगे, ठीक है? सक्सेस का जो है, नेक्स्ट स्लाइड। तो जो सक्सेस है, ठीक है, एस स्टैंड फॉर सेल्फ एनालिसिस, ठीक है? सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है? सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है? सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है? कि एटलीस्ट हर व्यक्ति, यस, क्या मतलब है? यस, खुद के बारे में ज्यादा चिंता करना, सही है? सही है? एटलीस्ट खुद के बारे में जानना, ठीक है? खुद के बारे में क्या जानना? खुद के बारे में क्या जानना है? खुद के बारे में ये जानना है कि मेरा एक्चुअली कैपेसिटी क्या है, मेरा जो माइंडसेट क्या है, ठीक है? खुद के बारे में अगर जानेंगे, देखिए सक्सेस होने के लिए ना, सक्सेस होने के लिए ना हर व्यक्ति खुद को जानना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति खुद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में देखिए क्या होता है ना, कोई भी बच्चे आ रहे एक ही ड्रीम लेके आ जाते हैं, बस मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और कुछ नहीं। और समाज के देखिए ओनली डॉक्टर और इंजीनियर का जरूरत है या हर चीज का जरूरत है? हर चीज का जरूरत है या नहीं है? हर चीज का जरूरत है। तो इसीलिए देखिए हर व्यक्ति, इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अगर एक मछली को और एक जानवर को और कोई पक्षी को अगर बोल देंगे कि सक्सेस का क्राइटेरिया ये है कि पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं, तो शायद ये सही क्राइटेरिया नहीं है कि किसी को जज करने के लिए, सही है कि नहीं? अगर हर व्यक्ति को अगर बोल देंगे बस डॉक्टर या इंजीनियर बनो, तो हो सकता है ये सही क्राइटेरिया है ही नहीं, सही ना? तो इसीलिए व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है, सही है कि नहीं? खुद के स्वभाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कह रहे हैं, व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए क्या बहुत जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट। तो ये भगवत गीता का 3rd चैप्टर का 35 नंबर श्लोक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप जब आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंस है ये श्लोक में, ठीक है? तो जाते हैं श्लोक में। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः, परम धर्म स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्म भयावहः। Yes, anyone want to read the translation? Yes. Yes. It is far better to discharge one prescribed duties, even though Faulty. then another duties perfectly. Destruction either goes of performing one's own duty is better than engaging in another duties, or to follow another's path is dangerous. Yes. तो यहाँ पे देखिए, so in this shloka Krishna is telling that always try to find out that what is your swadharma. Try to understand what is your swadharma, what is your natural behavior. हर व्यक्ति को देखिए कोई ना कोई चीज बहुत पसंद आता है,
हर व्यक्ति को उनका कोई भी चीज में वीकनेस है, ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और यहां में क्या कह रहे हैं कि आपका जो स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक जो नेचर है, हो सकता है यू आर नॉट परफेक्ट इन दैट थिंग, मे बी यू हैव नॉट अचीव द परफेक्शन इन दैट थिंग, बट स्टिल डूइंग दैट थिंग इज फार बेटर देन डूइंग सम अदर्स एक्टिविटीज। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कितने बच्चे हैं जिसको गाना गाने में बहुत शौक है, गाना गाने में बहुत शौक है, ठीक है, कितने बच्चे हैं जिसको म्यूजिक बजाने में काफी शौक है, ठीक है, कितने बच्चे हैं जिसको कोई गेम खेलने में बहुत शौक है। इसका मतलब किसी को पढ़ने के लिए कोई शौक नहीं है, सब गाना बजाना इसमें चलता है, तो ठीक है। और कितने बच्चे हैं जिसको बहुत पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, कितने बच्चे हैं जिसको हो सकता है क्रिकेट में शौक है, सब बच्चे को क्रिकेट में शौक है क्या? अच्छा ठीक है। कितने बच्चे हैं जिसको पढ़ने में काफी शौक है, पढ़ने में काफी शौक है। तो इसीलिए देखिए, तो कृष्ण ने यहाँ पे कह रहे जिस बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, उसी चीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है वो चीज बहुत परफेक्टली आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, हो सकता है वो चीज आप ठीक से नहीं कर पा रहे, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन आप और किसी के स्वभाव को ध्यान देके बहुत परफेक्टली करना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आज के टाइम में बहुत क्रेज है कि आइदर आप इंजीनियर बन जाओ या आइदर आप डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। मान लीजिए आपका स्वाभाविक नेचर उसमें नहीं है, ठीक है, स्वाभाविक नेचर नहीं है, तो अगर डॉक्टर या इंजीनियर भी बन भी जाएंगे तो फिर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा और एट द सेम टाइम आप उसमें उतना इंटरेस्टिंगली नहीं कर सकते, आप उतना ध्यान देकर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग देखते हैं अर्जुना, कितने व्यक्ति अर्जुन को जानते हैं? कौन थे अर्जुन? अर्जुन कौन थे? स्टूडेंट, आपका क्लासमेट कौन है अर्जुना? यस, कोई बोल सकता है अर्जुन कौन है? यस, और थर्ड पांडु, अच्छा ठीक है ठीक है। तो अर्जुन जो थे, अर्जुन किसके लिए जाना जाते हैं? मेडिकल क्लियर किए थे। कौन थे अर्जुन? आर्चर, सबसे बेस्ट आर्चरी में जाना जाता है अर्जुन को, ठीक है। आप देखिए उनका जब अभ्यास करते थे किस लेवल का अभ्यास करते थे, ठीक है। अर्जुन को और एक भी नाम था, उनका नाम था गुड़ाकेश, ठीक है। गुड़ाकेश का नाम किसी को पता है? गुड़ाकेश का नाम है, मतलब है जो व्यक्ति लेजीनेस मतलब आलस्य और निद्रा को जय कर लिए, जो व्यक्ति जो लेजीनेस और निद्रा को जय कर लिए, ठीक है। कोई है ऐसा व्यक्ति जो आलस्य और निद्रा को जय कर लिए? कोई नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे जय कर लिया। एक बार क्या हुआ कि पांडव लोग जब गुरुकुल में थे, रात को सोए हुए थे और उस टाइम में तो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ठीक है। तो रात मतलब एकदम डार्क नाइट, ठीक है ना, रात मतलब एकदम डार्क नाइट। तो रात को जब सोए हुए हैं तो उस टाइम में अर्जुन को किचन से कुछ आवाज आने का शब्द हुआ, किचन से, ठीक है। जब आवाज आया तो अर्जुन ने सोचे कि देखते हैं क्या आवाज आ रहा है किचन से, ठीक है। तो जब किचन गए, क्या देखे? तो देखे भीमसेन ने किचन के अंदर में जाके लड्डू डब्बा से लड्डू निकाल के खा रहे। आपसे कोई ऐसे किए हैं अंधेरे रात को? तो आपका भी भीमसेन का थोड़ा क्वालिटी है, ठीक है। तो रात को अंधेरे में जाके किचन से डब्बा से लड्डू निकाल के खा रहे, ठीक है। तो अर्जुन से भीमसेन को पूछे कि इतने रात को जब एकदम सब कुछ अंधेरा है फिर भी आप लड्डू का डब्बा कहां पे है और लड्डू निकाल के कैसे खा पा रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? तो भीमसेन ने क्या बोले पता है आपको? भीमसेन ने क्या बोले? भीमसेन ने बोले ये मेरा प्रैक्टिस है, ये मेरा प्रैक्टिस है, ठीक है। तो
तो जब भीमसेन ने बोले ये मेरा प्रैक्टिस है, मैं प्रैक्टिस से ही रात को इतने अंधेरे में भी लड्डू का डब्बा निकाल लेता हूं, तो अर्जुन के दिमाग के स्ट्राइक कर गया, अगर भीमसेन ने इतने अंधेर रात को लड्डू का डब्बा ढूंढ लेते हैं तो मैं आर्चरी प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता हूं रात को। तो और रात भर वो हमेशा सोते नहीं थे, वो आर्चरी प्रैक्टिस करते थे। और देखिए कोई व्यक्ति रात को आर्चरी प्रैक्टिस करना कब संभव होता है, जब व्यक्ति का खुद का वो नेचर का चीज होता है, नहीं तो कर नहीं सकता। आप देखिए पढ़ने के लिए मम्मी पापा कितने बार बोलते रहते, अरे थोड़ा पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मोबाइल छोड़ दो मोबाइल छोड़ दो, होता है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए व्यक्ति का अगर स्वाभाविक नेचर वो नहीं होगा ना, तो फिर पढ़ना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, अगर नेचर का बात किया जाएगा ना, तो सब लड़का लोग बोलेंगे हमको क्रिकेटर बनना है, और लड़की लोग बोलेंगे हम लोग को मॉडल में जाना है, हम लोग मॉडलिंग कर रहा है। कितने लड़के लोगों को मॉडलिंग में इंटरेस्ट है? आप थोड़ा शर्मा रहे, हाथ नहीं खड़ा करे, लेकिन सबको इंटरेस्ट है। कितने लड़के लोग रील्स बनाते हैं? कितने लड़के लोग रील्स बनाते हैं? देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग गया आपको। भगवत गीता का श्लोक चल रहा था, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन जब रील्स का बात आ गई कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, सही ना। और लड़का लोग कितना आपको लग रहा है आपको क्रिकेट में जाना चाहिए। बस ये जो स्वभाव है ना, ये बस दुनियादारी को देख के, क्योंकि बहुत रेस्पेक्ट मिल रहा है, ये मिल रहा है वो मिल रहा है, ये एक्चुअली स्वाभाविक नेचर नहीं है। तो स्वाभाविक जो नेचर है ना, ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खुद को एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जाएंगे, एस स्टैंड फॉर सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। हर व्यक्ति का कुछ स्ट्रेंथ होता है और हर व्यक्ति का कुछ वीकनेस होता है, सही है कि नहीं। हर व्यक्ति का कुछ स्ट्रेंथ रहता है और हर व्यक्ति का कुछ वीकनेस रहता है, सही है कि नहीं। तो आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आगे बढ़ना काफी डिफिकल्ट है। तो आप लोगों को पता है क्या आपका स्ट्रेंथ है और क्या आपका वीकनेस है? आपका पता है क्या स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है। और मैक्सिमम देखेंगे जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उनके वीकनेस को वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किए। जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति देखेंगे ना, उनका वीकनेस को वो स्ट्रेंथ में बदल दिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये जो ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स में एक व्यक्ति थे 8 गोल्ड मेडल लिए थे स्विमिंग में, उनका नाम क्या था? माइकल फेल्प्स, ठीक है। तो ये माइकल फेल्प्स के उनके लाइफ आप सुनते हैं, कब कोई सुने हैं उनके लाइफ में क्या क्या हुआ था? माइकल फेल्प्स जब 8 साल के थे, जब 8 साल के थे उनके पिता माता सेपरेट हो गए थे, ठीक है। 8 साल जब थे उनके पिता माता सेपरेट हो गए थे। तो सेपरेट होने के बाद इनको इतना स्नेह नहीं मिल रहा था, सही है कि नहीं। उनको उतना लव एंड अफेक्शन नहीं मिल रहा था। तो ये जो लोनलीनेस फील करते थे ना, ये जो लोनलीनेस फील करते थे, उनका इंटरेस्ट था किसमें? स्विमिंग में। तो स्विमिंग में जब इंटरेस्ट था और ये जो लोनलीनेस को हटाने के लिए वो स्विमिंग में ज्यादा टाइम देते थे। किसमें? स्विमिंग में ज्यादा टाइम देते थे। और उसके बाद जब ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक में, पहले ओलंपिक में एक ही मेडल लिए थे, ठीक है, एक ही मेडल लिए थे। उसके बाद जब 2008 में जो ओलंपिक होने वाला था, ठीक है, 2008 में जो ओलंपिक होने वाला था उसमें डिक्लेयर किए कि मैं 8 गोल्ड मेडल रह के दिखाऊंगा, ठीक है। शायद 2007 या 2008 हो सकता है। तो बोल दिए कि 8 गोल्ड मेडल मुझे लेना है। और जितने लोग ये सुन रहे थे ना, ये सब हंसी मजाक उड़ाए, पागल हो गए क्या, ये 8 गोल्ड मेडल लेने के लिए सोच रहे। और ये जो माइकल फेल्प्स थे वो क्या किए, उनके जो ड्रीम था इसको अचीव करने के लिए हर जगह में, उनका बेडरूम, उनका बाथरूम, हर जगह में फोटो लगाए कि मैं 8 गोल्ड मेडल लेके दिख रहा हूं, ठीक है। तो जब हर जगह में फोटो लगाए, हर बार उनको रिमाइंड आया कि 8 गोल्ड मेडल ले रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। 12 घंटे स्विमिंग करते थे। और उसके बीच में उनका क्या हुआ,
उसके बीच में उनका हाथ फ्रैक्चर कर गया। ठीक है, उनके बीच में हाथ फ्रैक्चर कर गया। तो हाथ जब फ्रैक्चर कर गया तो उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उनको बोल दिए कि आप ये कैंसिल कर दिए प्लान कि 2008 में जो ओलंपिक हो रहा है उसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि आपके हेल्थ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो माइकल फेल्प्स जो ड्रीम बनाए थे उनको कंप्रोमाइज करने का कोई भी मूड में नहीं थे। अभी क्या किए पता है, उनका हाथ का फ्रैक्चर हो गया था तो अभी जो प्रैक्टिस स्टार्ट किए ओनली पैर में, हाथ का यूज नहीं किया और पैर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। और कुछ दिन के बाद, 1 साल 2 साल के बाद पैर का मूवमेंट इतना अच्छा हो गया कि आराम से और किसी को compete करने का कंपटीशन माहौल में वो थे। ठीक है, और उसके साथ साथ 2 साल के बाद उनका हाथ भी ठीक हो गया और हाथ और ये जो पैर का कॉम्बिनेशन का मोमेंटम इतना अच्छा बना, उनको compete करने के लिए कोई भी व्यक्ति उस टाइम में नहीं थे। ठीक है, तो देखिए हर व्यक्ति, आप देखिए कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल होते हैं तो उनके जीवन में जो चीज उनका वीकनेस है उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं और मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, व्यक्ति उनका वीकनेस को सोच के और ज्यादा वीक बन जाते हैं। लेकिन हमेशा देखिए अगर सक्सेस होना है तो आपके जो स्ट्रेंथ है उस पे ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि अर्जुन जब उनके गुरुकुल में थे, एक बार उनके टीचर बुलाए। उनके टीचर कौन है? द्रोणाचार्य बुलाए और द्रोणाचार्य बुला के बोले कि एक पेड़ में एक पक्षी है तो मैं चाहता हूं कौन क्या क्या देख रहे। पहले बुलाए किसको? दुर्योधन को बुलाए। दुर्योधन को बुला के बोले कि देखो पेड़ में एक पक्षी है तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? वो बोल रहे हैं एक पेड़ है, कुछ पत्ता दिखाई दे रहा है, कुछ एक मतलब पक्षी भी है। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को बुलाते। युधिष्ठिर महाराज को बुला के बोले कि आप क्या देख रहे? वो बोल रहे मैं कुछ पत्ता देख रहा हूँ, एक पक्षी देख रहा हूँ और उनके आंखें देख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बुलाए अर्जुन को। अर्जुन को बोले कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन बोले ओनली मुझे आंखें ही दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली मुझे आंखें ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलते हैं लेजर लाइटेड फोकस। लेजर लाइटेड फोकस, व्यक्ति को कुछ पता नहीं चल रहा है अभी मोबाइल में क्या रेस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। उनको एक ही ध्यान है कि बस मुझे मेडिकल क्लियर करना है या इंजीनियरिंग क्लियर करना है, वही दिखाई दे रहा है। किसी को ऐसे दिखाई दे रहा है? और आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है तो इसको बोलते हैं लेजर लाइटेड फोकस। ठीक है, लेजर लाइटेड फोकस। तो इस ईयर का जो +2 सीबीएसई के जो साइंस के टप्पर, ठीक है, उनका इंटरव्यू हमारा चैनल पे हुआ था। तो उनको मैं पूछा आप इतना जो कंसंट्रेशन कैसे रख पाते थे? क्या आप मोबाइल यूज नहीं करते थे? आपका सोशल मीडिया का कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सब प्रोफाइल नहीं था? वो बोले मेरा मोबाइल ही नहीं था। अगर स्कूल या कॉलेज से कोई मैसेज आता है तो मेरा मम्मी को मोबाइल में मैसेज आता है, वो मुझे कम्युनिकेट कर देते थे। मेरा कोई मोबाइल ये सब कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए देखिए अगर सक्सेस पाना है तो मोबाइल को साइड में रखिए, नहीं तो मोबाइल में रील देखते रहिए। ठीक है, तो उसके बाद जाएंगे अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे सी स्टैंड फॉर। कितने बच्चे हैं जो कंसंट्रेशन में पढ़ पाते हैं? कंसंट्रेशन में पढ़ने का तो बहुत दूर का बात है। इधर थोड़ा बैठ के सुनने के लिए भी कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। सही है कि नहीं? इधर थोड़ा बैठ के सुनने के लिए भी कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। और आपको पता है द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड कौन है? सबसे डिस्ट्रैक्टेड कौन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है? बॉडी। कौन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है? लिविंग एंटिटी। कोई एक लिविंग एंटिटी है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। कौन? 2017 तक गोल्ड फिश
2017 the goldfish is the most distracted element in this universe. कितना समय का ध्यान रख पाते थे? 9 सेकेंड। कोई भी चीज में गोल्ड फिश 9 सेकेंड तक ध्यान रख पाते थे, ठीक है, गोल्ड फिश। 2017 के बाद और एक स्पेसिस उनको क्रॉस कर गया। कौन है? कौन है? हाँ, आपको पता है, कितना कॉन्फिडेंस में बोलते हैं हम। ह्यूमन बीइंग 2017 के बाद ह्यूमन बीइंग क्रॉस कर गया और 9 सेकेंड था गोल्ड फिश का। अभी ह्यूमन बीइंग का कितना है? 7 सेकेंड। 7 सेकेंड, उसके बाद इधर उधर इधर उधर जाएगा। 7 सेकेंड के बाद काम खत्म। और ये कौन सा चीज सबसे ज्यादा हेल्प किया आपको डिस्ट्रैक्टेड करने के लिए? आपका सबसे जो क्लोज फ्रेंड, वो कौन है? मोबाइल। कितना गर्व के साथ आप कह रहे हैं, कितना हंसी आ रहा है मुंह में कि हमारा दोस्त कितना हेल्प करता है। आपका मोबाइल सच में आपको हेल्प करता है या डिस्ट्रैक्टेड करता है? और जो व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा करता है वो आपका दोस्त है या दुश्मन? दोस्त है या दुश्मन? तो कौन कौन उसका यूज को आज से ही थोड़ा कम करेंगे? आज से ही उसका यूज को कम करेंगे। इसमें बहुत हिचकिचा रहे, नहीं हम लोग काम नहीं करेंगे। कौन कौन है उसको कम करेंगे? कितना टाइम आप मोबाइल यूज करते हैं? 1 आवर। कितना टाइम यूज करते हैं? हाँ? कितना टाइम? 20 मिनट। कितना बच्चे हैं जो 1 घंटा यूज करते हैं मोबाइल? 1 घंटा यूज करते हैं मोबाइल। अच्छा, ठीक है। कितना बच्चे हैं जो 3 घंटा मोबाइल यूज करते हैं? कितना बच्चे 6 घंटा मोबाइल यूज करते हैं? कोई नहीं। कितना बच्चे हैं जो आधा घंटा मोबाइल यूज करते हैं? तो आप आधा घंटा में क्या मोबाइल में यूज करके क्या देख रहे? क्या देखते रहते? क्या देखते रहते? हाँ, क्या देखते? अच्छा, वो संस्कृत का कुछ देख रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देखिए, लेकिन इसका यूज को बहुत मिनिमाइज करिए। ठीक है, इसका यूज को मिनिमाइज करिए। तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, सक्सेसफुल पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम पढ़ना चाहिए। सही है कि नहीं? बहुत ज्यादा टाइम पढ़ना चाहिए। मतलब जो 12-13 घंटा 20 घंटा पढ़ेगा वो सक्सेस हो जाएगा? नहीं। तो क्या चाहिए? फोकस स्टडी या लंबा टाइम तक स्टडी। और फोकस लाने के लिए क्या जरूरी है? फोकस लाने के लिए क्या जरूरी है? फोकस लाने के लिए मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन से हटना चाहिए। सही है कि नहीं? जो ये जो सीबीएसई का टॉपर हुआ ना, वो कितना घंटा पढ़ता था आपको पता है? कितना घंटा? अब इमेजिन कर सकते हैं कितना घंटा वो पढ़ता था? कितना? हाँ, 10, 2, 6, 14, यस, कितना घंटा? 3, कितना? कितना? वो 4 से 5 घंटा ही पढ़ाई करता था और ज्यादा नहीं। 4 से 5 घंटा। लेकिन ये 4 से 5 घंटा जो पढ़ाई है ना, काफी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते थे। ठीक है, मतलब स्कूल कॉलेज के बाद बस 4 से 5 घंटा पढ़ाई करते थे और ज्यादा टाइम नहीं। और 4-5 घंटा में सबसे आगे चले गए। क्यों? क्योंकि उनका फोकस था। ठीक है, फोकस ही था। एक बार क्या हुआ, एक बार जो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका गए थे। ठीक है, तो अमेरिका जाने के बाद एक नदी के किनारे में बैठे थे, और नदी के किनारे में जब बैठे थे उस टाइम में क्या हुआ, यूएस के जो आर्मी फोर्स थे ना, वो कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस क्या करते थे कि नदी में जो फ्लो आ रहा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे अंडे ही ऐसे फ्लो में जाता था। तो उनको ऐसे फोकस करके, ध्यान करके उनको शूट करना था उनका। ठीक है, तो जब शूट करते थे तो आर्मी लोग जब शूट करते थे काफी मिस होता था। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि ठीक है ठीक है, मुझे दो, मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको।
तो स्वामी को देखने के बाद आप बोले आप तो कभी गन ही जिंदगी में देखे नहीं होंगे, आप क्या गन चलाएंगे? ठीक है, तो आपका जो वेशभूषा है, आप तो कभी गन देखे ही नहीं होंगे, आप क्या चलाएंगे? तो स्वामी विवेकानंद गए और टकाटक करके जितना भी उनको चलाना था सब चलाए और सब टारगेट को हिट कर गया। तो उनको पूछे कि ऐसे कैसे हो सकता है, और बोले ओनली कंसेंट्रेशन। ठीक है, क्या है? कंसेंट्रेशन। तो इसीलिए देखिए व्यक्ति का कंसेंट्रेशन जितना है वो उतना रिजल्ट ला सकता है। हम कितना खा रहे हैं उससे एनर्जी नहीं आता है, हम कितना डाइजेस्ट करते हैं, हम कितना समय पढ़ाई कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, हम कितना समय कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। मैक्सिमम टाइम में क्या होगा, बच्चे क्या करते, क्लास में चले गए, शाम को ऐसे बुक खोल दिए और पेज नंबर कितना 20, 6 बजे पेज नंबर 20, 6:30 बजे पेज नंबर 20, 7 बजे पेज नंबर 20, 7:30 बजे भी पेज नंबर 20। तो अभी मम्मी को चिंता आएगा कि बच्चा को शायद कोई शनि ने पकड़ लिया, शनि ग्रह चल रहा है, तो जाएंगे किसके पास? बाबा के पास, कि मेरा बेटा को शनि का ग्रह चल रहा है। कोई शनि का ग्रह नहीं, उनका कॉलेज या स्कूल का सानिया का दशा चल रहा है। कोई सानिया को सोच सोच के उनका कंसेंट्रेशन जा रहा है। लड़की लोगों का भी वही हाल है, ऐसे ही पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। तो मम्मी पापा टेंशन, कोई राहु का शायद दशा चल गया, राहु। कोई राहु नहीं, स्कूल का वो राहुल का दशा चल रहा है, स्कूल का राहुल का दशा चल रहा है और कोई राहु का दशा नहीं। तो ये राहु और सूर्य का दशा छोड़िए अगर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये सब जो अट्रैक्शन, ये सब ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, एग्जाम खराब हो जाता है और सब चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मोबाइल का इस्तेमाल भी कमाना पड़ेगा और ये सब अट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन नेक्स्ट। तो ये जब कंसेंट्रेशन का बात आता है, देखिए हर बच्चे, आपको रियलाइज हो रहा है कि वो देखिए बात कर रहे, क्या नाम है उनका, आप क्या बात कर रहे? देखिए हम कंसेंट्रेशन का बात करते हैं, सी इज द लाइव एग्जाम्पल, तो आप लोग का कंसेंट्रेशन नहीं रहता है। और अर्जुन ने भगवत गीता में यही बात बोल रहे हैं, अर्जुन ने भगवत गीता में यही बात बोल रहे हैं। किसको किसको पता है कि अर्जुन काफी कंसेंट्रेटेड व्यक्ति थे, किसको किसको लग रहा है? लेकिन देखिए ये बात अर्जुन ने कह रहे, क्या कह रहे हैं हम लोग देखते हैं। ये भगवत गीता का 6 चैप्टर का 34 नंबर श्लोक है और इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सब लोग ट्राई करना चाहिए इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म् तस्महं निग्रहमन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। तो क्या कह रहे? चंचलम ही मन कृष्ण है, कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। कितने बच्चे एग्री करते हैं आपका मन भी चंचल है? और जो हाथ नहीं खड़े कर रहे उनका मन भी चंचल है, वो हाथ खड़े नहीं कर रहे, सबका मन चंचल है। तो कह रहे मन बहुत चंचल है, सही है कि नहीं? मन बहुत चंचल है, कृष्ण मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म, 3 चीज बोल रहे हैं, प्रमाति बलवत दृढ़म। प्रमाति का मतलब काफी फ्लिकरिंग है। हम लोग इधर बैठे हैं और किसी का मतलब सोच आ रहा है, मतलब क्लास से जाएंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे, हो रहा है कि नहीं? फ्लिकरिंग, काफी फ्लिकरिंग है। क्या कह रहे? प्रमाति बलवत, बहुत पावरफुल है। आपको कभी कभी रियलाइज हुआ है, आप एग्जाम दे के गए, एक पेपर दे के गए, एग्जाम का पेपर जो भी हुआ आपको याद आया कि एक क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट पेपर में आप ध्यान नहीं दे पा रहे, माइंड उसमें ही लगा है ये कि क्यों गलती हो गया, क्यों गलती हो गया, क्यों गलती हो गया, होता है कि नहीं? होता है। नेक्स्ट पेपर में अभी ध्यान नहीं जा रहा है, वही पेपर में आपका ध्यान रहता है, होता है कि नहीं? तो इसीलिए वो कह रहे प्रमाति मतलब काफी ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी, बहुत जिद्दी है। कौन कौन बच्चे काफी जिद्दी है? जिद्दी
अच्छा, आप अकेले बच्चे हैं क्या? पेरेंट्स के एक ही बेटी है, एक ही बेटा है क्या? तो इसीलिए काफी जिद्दी अच्छा है या अच्छा नहीं है? जिद्दी अच्छा है। ओ अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये क्या है? पहला है फ्लिकरिंग, ठीक है। उसके बाद बोल रहे जिद्दी, काफी जिद्दी है। मन भी ऐसा ही है, कुछ चीज अगर पकड़ लिया ना तो वही चलता रहता है, वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। आपका ऐसा हुआ कभी क्लास में वही कुछ बोल दिए कोई, आपका वही चल रहा है, क्यों बोल दिया यार, क्यों बोल दिया, 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 चलता है कि नहीं ऐसे? तो इसको बोलते हैं क्या ना, जिद्दी। मतलब उसको दिमाग से हटा ही नहीं रहे, क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, वही चल रहा है। उसके बाद लास्ट में बोल रहे वेरी स्ट्रांग माइंड, ना काफी स्ट्रांग है। हम चाहते हुए भी खराब चीज से हम दूर नहीं जा पा रहे और अच्छा चीज का जो आदत हम डाल नहीं पा रहे। सही है कि नहीं? तो इसीलिए अर्जुन ने कह रहे ये मन जो है काफी स्ट्रांग है, वो अर्जुन कह रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, ऐसा लग रहा है वायु को कंट्रोल करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। वायु को कंट्रोल करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और अर्जुन के पास ऐसा पावर था, हरिकेन जैसे अगर मोमेंटम से कोई वायु आता है तो उसको कंट्रोल करने का पावर उनके पास था, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं था। तो मेरा सवाल है, आपके पास कोई है चीज जो एयर को कंट्रोल कर सकते हैं? एनीथिंग यू हैव टू कंट्रोल द विंड? है किसी के पास है? यू कैन कंट्रोल द विंड? है यार, आप थोड़ा दिमाग लगाए। है गर्ल्स एंड बॉयज, यू हैव? यस यस एग्जैक्टली, प्लीज कैन यू क्लैप फॉर हिम। आप देखिए, जो फैन चल रहा है उसको बंद कर सकते हैं ना, उसका स्विच है। एसी चल रहा है, उसका स्विच के माध्यम से आप बंद कर सकते हैं। लेकिन माइंड का ऐसा कोई स्विच है आपके पास? माइंड को कंट्रोल करने के लिए कोई स्विच है आपके पास? कोई भी स्विच है ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी स्विच हमारे पास नहीं है, तो माइंड को कैसे फिर कंट्रोल करेंगे? माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में अर्जुन को अभी कृष्ण ने बताएंगे इनका सल्यूशन, ठीक है, इनका सल्यूशन। लेकिन कितने बच्चे को ये माइंड का कंट्रोल करने के लिए जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट है जाने के लिए? कितने बच्चों को इंटरेस्ट है कि माइंड को कंट्रोल करने का फॉर्मूला आज सीख के ही जाएंगे? कितना बच्चों को इंटरेस्ट है? ठीक है, हम सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। तो अभी देखिए, अभी कृष्ण ने कह रहे कि मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये 6 चैप्टर का 35 नंबर श्लोक है, आप लोग दोहराएंगे मेरे साथ। अच्छा, कितने बच्चों के पास भगवत गीता है? अच्छा, भगवत गीता है। कितने बच्चे भगवत गीता पढ़े हैं? एटलीस्ट जीवन में एक बार पढ़े, एक बार पढ़े। आप पढ़े? कौन सा श्लोक पढ़े? कौन बोले हैं पहला श्लोक? कौन पहला श्लोक पढ़े हैं भगवत गीता? कौन बोले हैं पहला श्लोक? यस, क्या श्लोक है? ठीक है, उनके लिए थोड़ा क्लैप दीजिए। यस, तो पहला जो श्लोक है कौन बोले हैं? धृतराष्ट्र, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कृष्ण ने उसका सल्यूशन दिए हैं, माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, आपका पूरा पावर गया, थोड़ा पावर आप करिए पावर, ठीक है। अभी कितना बजा? अभी 9:30 ही बजा है, ब्रेकफास्ट अभी तक डाइजेशन पूरा मात्रा में हुआ नहीं, ठीक है। श्री भगवान उवाच, असंशय महाबाहु मन्ना दुन्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्याणे च गृह्यते। ठीक है, उसका ट्रांसलेशन कोई पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? यस, फ्रॉम बॉयज साइड, यस।
Lord Krishna said, हाँ. "Oh mighty arm of son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to cure the restless mind, but it is possible by suitable justice and by judgment." तो अभी कृष्ण ने क्या कह रहे हैं कि असंशय महाबाहु कि नो डाउट माइंड को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण ने कितना फ्रेंडली व्यक्ति है, हमारा जो प्रॉब्लम को ना ऐसे मतलब हंसी मजाक में उड़ा नहीं रहे, मन को कंट्रोल करना बहुत आसान है ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, सच में मन को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, असंशय महाबाहु मन्नत दुर्निग्रह चलम अभ्यास है तो कंते, अभ्यास बाय प्रैक्टिस 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 करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि प्रैक्टिस 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 अभ्यास है तो कंते। नेक्स्ट वैराग्य च गृह्यते, वैराग्य का मतलब क्या है, वैराग्य का मतलब क्या है, यस डिटैचमेंट, वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट। अच्छा उड़िया में कोई बोल सकते हैं वैराग्य का मतलब क्या है, उड़िया में, यस और सांसारिक मोह और दूर, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या है डिटैचमेंट। अच्छा क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे जो मन को कंट्रोल कर सकेंगे, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, यस क्या प्रैक्टिस करेंगे, यस कोई है, क्या प्रैक्टिस आप करेंगे जो मन को कंट्रोल कर सकते हैं, कि क्लास में बैठ के दूसरे के साथ बात करना, नहीं ये प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। ओके ठीक है, और कुछ, यस अच्छा बिफोर डूइंग एनीथिंग डेडिकेट टू कृष्णा, अच्छा ठीक है, और कुछ, यस यस मेडिटेशन, और कुछ, यस हाँ मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन तो हम लोग लास्ट में दिखाएंगे कैसे मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, अभी क्या क्या कवर हुआ, ए स्टैंड फॉर सेल्फ एनालिसिस, यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसके बाद नेक्स्ट सी फॉर कंसेंट्रेशन, नेक्स्ट सी फॉर कॉन्फिडेंस। अच्छा ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, अच्छा कभी कभी ऐसा हुआ है आप बहुत बढ़िया प्रिपेयर किए हैं, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन किए हैं, पढ़ाई अच्छे से किए हैं, जब एग्जाम में जा रहे एंट्री कर रहे, जब बहुत सारे बच्चों को देख रहे, एग्जाम का एकदम जो चेयर टेबल सजाया हुआ है वो देख रहे, आपको कभी कभी घबराहट होता है कि नहीं, और कभी कभी ऐसा हुआ है एग्जाम जितना करीब आ रहा है, जितना करीब आ रहा है आपका धड़कन उतना बढ़ रहा है, कितना बच्चों को होता है ऐसे, और लड़की लोगों को ज्यादा होता है क्या, अच्छा तो कितना बच्चों को ये हो रहा है, तो इसको कहते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका पढ़ाई सब कुछ अच्छा है, और ये मैक्सिमम कब आता है ना, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तो आप स्कूल के बच्चे आप देखे हैं, सब जो भी है आपके क्लास के बच्चे हैं, आप जब कॉम्पिटिटिव देने के लिए कोई सेंटर में जा रहे हैं ना, आप जा रहे हैं, यू हैव वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी व्हेन यू विल गो देयर एंड यू विल सी ऑल दिस स्टूडेंट, आफ्टर दैट यू विल फील दैट शायद मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा इधर, और ये कॉन्फिडेंस का जो लैकिंग होगा ना, उसमें एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप कंपटीशन में बहुत नंबर के पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस का बहुत जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा कॉन्फिडेंस, आप जितना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताता हूं, अगर भगवत गीता आप पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, आप बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तब भी ये कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा ये कॉन्फिडेंस का जो बात है, ये कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखा सकता है, कोई इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करने के बाद ये सीख सकते हैं, कोई स्कूल कॉलेज ये सिखा सकते हैं, नहीं। तो इसको क्या है ना, खुद को कल्टीवेट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कह रहे हैं, मच्चिता सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद तरिष्यसि अपीचेत अहंकारा नाश्रुष्यसि विनश्यसि। तो कह रहे हैं अगर आपका जो चित्त, आपका जो माइंड है ना, अगर भगवान के पास लग गया, तो फिर आप जितना भी प्रॉब्लम्स आएगा उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपका माइंड भगवान के पास नहीं लगा, तो फिर क्या होगा, अपीचेत अहंकारा नाश्रुष्यसि। अगर कोई इगोइस्टिक होके
उनका दिमाग मेरे से नहीं लगा तो फिर क्या होगा, उसका फेल्यूर मिलेगा ही तो मिलेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अभी जाएंगे कॉन्फिडेंस के बाद। लेस्ट इज ईगो मिनिमाइज। कोई है बहुत ईगो रह के सक्सेस हो सकता है जीवन में, या कोई लीडर। अब मान लीजिए आपके जो टीचर्स हैं ना, सबसे कौन से टीचर को आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं या बहुत प्रेम करते हैं? कौन से टीचर? नाम बोलने का कोई जरूरत नहीं, नाम बोलने का कोई जरूरत। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ। ऐसे कोई टीचर है जो आपको हो सकता है बहुत मदद करते हैं, आपको समझते हैं, आपका कुछ प्रॉब्लम्स हुआ आप आराम से समझते हैं, आपको कंसोलेशन करते हैं, आपको मोटिवेशन करते हैं, उस टाइप के टीचर को आप पसंद करते हैं। सही है कि नहीं? सही है ना? तो उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सही है कि नहीं? तो ऐसे ही संसार में जो भी कोई लीडर है ना, लीडर अगर बहुत हम्बल है तब भी हम अप्रिशिएट करते हैं। सही है? तो मैं एक अच्छा सा स्टोरी बताऊंगा, ये छंदोग्य उपनिषद का स्टोरी है। तो स्टोरी सुनने के बाद कौन कौन इंटरेस्टेड है ये स्टोरी सुनने के लिए? लग रहा है 30% बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। और दूसरे बच्चे आपको क्या इंटरेस्ट है? सोने के लिए सोने के लिए इंटरेस्ट है तो ठीक है, ये स्टोरी आप सुनेंगे। आप अगर सब हाथ खड़ा करेंगे तभी मैं सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। और ये स्टोरी बोलने के बाद आपको पूछूंगा भी, क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है? ये कौन सा उपनिषद का बात है? ये छंदोग्य उपनिषद का बात है। ठीक है? कौन सा उपनिषद? छंदोग्य उपनिषद। आप सोचते होंगे और कोई नाम नहीं मिला क्या? ये नाम दे दिए। ठीक है, जो नाम है उसमें संतुष्ट रहो। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद का स्टोरी है। तो आपके ही जैसा एक बच्चा था, उनका नाम है श्वेतकेतु। क्या नाम है? श्वेतकेतु। उनका अभी उम्र है 7-8 साल। ठीक है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिसका उम्र है 7-8 साल? कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, 7-8 साल के थे उनका उम्र, और नाम क्या है? श्वेतकेतु। ठीक है, और उनके पिताजी का नाम क्या था? उद्दालक। क्या नाम था? उद्दालक। अभी अगर स्टोरी होता तो आप नाम चेंज कर देते, बट एनीवे ये नाम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिताजी का नाम क्या था? उद्दालक। और बच्चे का नाम क्या था? श्वेतकेतु। ठीक है, तो ये जो श्वेतकेतु का जब 7-8 साल का उम्र हुआ तो पिताजी सोचे कि इनको अभी विद्या का जरूरी है। ठीक है, इनको अभी विद्या का जरूरी है, तो उनको भेज दिए कहाँ पे? गुरुकुल में भेज दिए। तो गुरुकुल में जाके श्वेतकेतु विद्या अध्ययन किए। तो ऐसे लगभग मान लीजिए 7-8 साल विद्या अध्ययन किए, और विद्या अध्ययन करने के बाद श्वेतकेतु जब घर लौट के आए, ठीक है, when he returned to his home after his education, तो ये उद्दालक देखे कि बच्चे के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार है। क्या है? ईगो है। कितने बच्चों को ऐसा भी है, थोड़ा ईगो हो गया, मतलब बहुत हम पढ़ाई किए यार, मम्मी पापा आपको क्या पता है, हम लोग बहुत कुछ पता है। कितने बच्चों को है? किसी को नहीं है। बाप रे बाप, सब सत्ययुग में आए हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, तो ये जो श्वेतकेतु के अंदर थोड़ा ईगो आ गया, तो पिताजी को पता चल गया। तो पिताजी उनको थोड़ा सिखाने के लिए अभी क्या किया, थोड़ा चुप रह जाओ, हरि बोल, थोड़ा चुप रह जाओ थोड़ा और 15 मिनट चुप रह जाओ। ठीक है, तो अभी उनको लेके गए, कहाँ पे लेके गए? एक पेड़ के पास लेके गए। ठीक है, एक जो बेनियन ट्री के पास लेके गए। ठीक है, तो बेनियन ट्री कितना बड़ा होता है ना, और उसका जो फल है कितना बड़ा होता है? अंडे के जैसा नहीं, कितना बड़ा होता है? अब बेनियन ट्री कोई नहीं देखे क्या? बेनियन ट्री कौन कौन देखा है? तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम बेनियन ट्री दिखाने के लिए आपको लेके जाएंगे। ठीक है बाद में भगवत गीता सुनाए। ठीक है, तो उनका जो फल था ना, छोटा सा था। तो अभी श्वेतकेतु को उनके पिताजी पूछे, ये जो फल देख रहे हैं इसके अंदर आप क्या देख रहे? तो श्वेतकेतु बोले कि ये क्या देख रहा हूं, कुछ ज्यादा कुछ नई चीज देख रहा हूं। तो पिताजी ने बोले कि ये जो फल है ये लग रहा है छोटा सा, लेकिन इसके अंदर भी उतना ही कैपेसिटी है इतना बड़ा पेड़ को खड़ा करने के लिए। ठीक है, इतना ही कैपेसिटी है इसको बड़ा पेड़ में होने के लिए, इसके अंदर कैपेसिटी है। तो इसका मतलब है हर व्यक्ति हो सकते हैं आप छोटे दिख रहे हैं,
लेकिन हर व्यक्ति भगवान का ही अंश है और हर व्यक्ति समाज में बहुत कुछ चीज करने के लिए क्षमता भगवान ने आपको दिए हैं, लेकिन हमारा ईगो ही हमको पीछे रहने के लिए मजबूर कर देता है। अगर ईगो को हम साइड करेंगे और संसार के लिए कुछ करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमेशा हम अप्रिसिएशन मिलेगा। और जितने भी लीडर देखिए समाज में, कोई भी लीडर जिसको समाज बहुत रेस्पेक्ट देता है, आप देखिए हमेशा बहुत हम्बल रहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, कौन कौन पसंद करते हैं अब्दुल कलाम? सब पसंद करते हैं, क्यों? बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। नहीं, तो दैट्स व्हाई अब्दुल कलाम ऑलवेज टेल दैट आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन। ठीक है, आई कैन गिव माई हैंड टू समवन। ठीक है, तो अब्दुल कलाम, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति कौन है? इन्फोसिस के फाउंडर। ठीक है, उसके बाद है रतन टाटा। तो देखिए जितने भी लीडर है ना, हर लीडर एक्चुअली क्या करते थे, मतलब काफी हम्बल है, इसीलिए आगे बढ़े। ठीक है, ई का ई स्टैंड फॉर, ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा ए स्टैंड फॉर सेल्फ मोटिवेशन। कितने बच्चे सुबह ऑटोमेटिक उठ जाते हैं, मम्मी बुलाने से पहले ही उठ जाते हैं, या आपका अलार्म बज बज के बंद हो जाता है, उसके बाद उठते हैं। कितने बच्चे हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं? ठीक है, कितने बच्चे हैं जो 5 बजे उठ जाते हैं? और ये मैं क्लास का दिन नहीं बता रहा हूं, ये संडे का दिन का बात पूछ रहा हूं। संडे में आप 4 बजे उठ जाते, कोई नहीं। ठीक है, 5 बजे कौन उठ जाते हैं संडे को? कौन कौन है जो 6 बजे उठ जाते हैं? कौन कौन है जो 7 बजे उठ जाते हैं? कौन कौन है जो 8 बजे उठ जाते हैं? कौन कौन है जो 9 बजे उठ जाते हैं? कौन कौन है जो 10 बजे उठ जाते हैं? कौन कौन है जो 12 बजे उठ जाते हैं? कौन कौन है जो 2 बजे उठ जाते हैं? कौन कौन है जो उठना नहीं चाहते हैं? ठीक है। तो अगर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? सेल्फ मोटिवेशन का बहुत जरूरी है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन का बहुत जरूरी है। कितने बच्चे खुद का जो पढ़ाई का टाइम है ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं, और कितने बच्चे मम्मी पापा के गाली पढ़ने के बाद बैठते हैं? गाली पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इसीलिए देखिए जीवन में सेल्फ मोटिवेटेड होना काफी जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड होंगे? ठीक है, नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा सर्विस एटीट्यूड। सर्विस एटीट्यूड, ठीक है, कितने बच्चे सेल्फिश है? आप सेल्फिश है, ओके। और कितने बच्चे जो है सेल्फलेस है? देखिए आज के टाइम में मैं काफी स्कूल जाता हूँ, तो हर स्कूल में जाने के बाद ये जो उम्र है ना, मतलब 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड में मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों का ये लव अफेयर्स ये सब चलता रहता है ये उम्र में। ठीक है, और इसमें देखिए मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, बच्चे दूसरों का इमोशन को नहीं समझते। बस एक अट्रैक्शन है, इसीलिए बोलते हैं लड़कियों का हंसी उनका एक अदा है, जिसको ये प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। ठीक है, तो काफी टाइम में काफी मजा आ रहा है ये सब चीजें ना, काफी मजा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर किसी का हंसी में आपको लग रहा है वो शायद
प्रेम में हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो ऐसे भी हंसते हैं, ठीक है। तो इसको प्यार नहीं समझे और गधा नहीं बने, ठीक है, गधा नहीं बने। तो आप सक्सेस होके दिखाइए, सर्विस एटीट्यूड रखिए। संसार में मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि आप लोग आगे भी जाएंगे, शादी करेंगे, जो भी है, लेकिन अगर आपके जो भी है संसार के जो भी भाई है, बहन है, पेरेंट्स है, उनको समझना चाहिए। हम लोग मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, जिद्दी हो जाते हैं, पेरेंट्स के पास भी काफी जिद्दी हो जाते हैं, भाई बहन के पास भी काफी जिद्दी हो जाते हैं, और ये जिद्दी नेचर में बढ़ते 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 क्या होता है ना, आगे जाके भी अभी हम लोग काफी जिद्दी हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना, हम लोग सही में रह सकते हैं ना, कोई हमारे साथ भी रहने के लिए अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सर्विस एटीट्यूड में रहना चाहिए सबको। किसको अच्छा लगता है कोई अगर दूसरे आपको केयर करे, आपको अगर केयर करे तो आपको अच्छा लगता है, आपके बारे में पूछे आप क्या कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, पूछे तो आपको अच्छा लगता है। कितना बच्चों को अच्छा लगता है कोई अगर आपको प्रेम करे, ऐसे प्रेम नहीं, मतलब जैसे नॉर्मली भाई बहन का प्रेम घर में, जैसे कितना बच्चों को अच्छा लगता है। ये स्वाभाविक है, ये जो एज है प्रेम के बात बोलने से ही आप उसी तरह लेके जाएंगे, तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन आपको केयर मिलेगा या सही से आपको प्रेम मिलेगा कोई गारंटी है? लेकिन आपके हाथ में है, आप सबको प्रेम कर सकते हैं या आप सबको केयर कर सकते हैं, सही है कि नहीं? तो when you will take this mindset that everyone I will respect, I will care them, I will love them, then obviously you will be always happy. But when you will expect that everyone will respect me, everyone will love me, everyone will care me, then definitely throughout the life you will be always in anxiety, ठीक है? तो हमेशा आप टेंशन में रहेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई उत्तर है तो दे सकते हैं, या अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई कमेंट है तो दे सकते हैं। लेकिन एक चीज है हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बीच में रखे थे ना, मेडिटेशन के द्वारा हमारा माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो अभी हम दिखाते हैं कि हाउ वी कैन डू द मेडिटेशन, ठीक है। सो दिस इज द साइंटिफिक प्रोसेस, ओके। सो साइंस इज टेलिंग, सो वी हैव हाउ मेनी सेंसेस? 5. सो व्हाट आर द सेंसेस आर? कौन को क्या क्या सेंसेस है? यस, क्या सेंसेस है? आपका सेंस नहीं है ओके, ठीक है। किसका कॉमन सेंस है वो बोल सकते हैं 5 सेंसेस क्या क्या है? यस, ठीक है। आईज और ईयर, ठीक है। नोज, यस। टंग, स्किन, ठीक है। ये 5 सेंसेस है। और देयर इज वन सिक्स सेंस। सिक्स सेंस कौन सा है? आप कभी कभी बोले मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, माय सिक्स सेंस इज टेलिंग। कभी कभी होता है ना, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। व्हाट इज द सिक्स सेंस? गॉड ब्रदर कौन है? कौन है सिक्स? गॉड फीलिंग। वो कौन सा वाला फीलिंग? यस, कौन सा है सिक्स सेंस? यस, अवेयरनेस, ओके, ठीक है। और कुछ? कौन बोल रहा है? माइंड। यस, कैन यू क्लैप फॉर हिम? माइंड इज द सिक्स सेंस, ठीक है। माइंड इज द सिक्स सेंस। भगवान भगवत गीता में कह रहे मन षष्ठेंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति, ठीक है। माइंड इज द सिक्स सेंस, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूं, साइंस इज टेलिंग आउट ऑफ द सिक्स सेंसेस, ठीक है। आउट ऑफ द सिक्स सेंसेस, if we are involved in a purified activities and more than 3 senses are involved in this thing, then gradually this mind will be controlled, ठीक है। साइंस क्या कह रहे हैं कि हमारा जो 6 इंद्रिय है, कोई अगर पवित्र कार्य में 6 इंद्रिय से 3 से ज्यादा इंद्रिय उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो माइंड उसमें क्या होगा ना, ग्रेजुअली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूं ये जो चैंटिंग प्रोसेस है, इसमें कैसे आपका 3 से ज्यादा इंद्रिय इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बीट, ठीक है। कोई देखे ये बीट ऐसे कभी देखे? कौन कौन देखे? इसको क्या करते हैं?
गला में रखते हैं, ठीक है, माला करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बीड मैं जब चैंटिंग कर रहा हूं, व्हेन आई एम चैंटिंग यू जस्ट सी, सो व्हेन आई एम होल्डिंग एंड व्हेन आई एम चैंटिंग, सो दैट टाइम यू जस्ट सी माय स्किन इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो कौन सा मंत्र हम उच्चारण करते हैं? एनीवन कैन टेल इन ISKCON व्हिच मंत्र दे चैंट? यस एनीवन? यस यस, कौन सा महामंत्र? यस प्लीज कैन यू क्लैप फॉर हर? यस, क्या मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू जस्ट सी व्हेन आई एम होल्डिंग माय स्किन इज इन्वॉल्व्ड, व्हेन आई एम चैंटिंग माय टंग इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। और इसको उतना जोर उच्चारण करना चाहिए जितना आपको कान को सुनाई दे, ठीक है। तो अभी कितना सेंसेस इन्वॉल्व हो गया? 3। उसके बाद आंखें, आंखें में अभी क्या देखेंगे? आइदर कृष्ण का कोई फॉर्म देखेंगे या हो सकता है कृष्ण का कोई लीला। अभी आंखें भी इन्वॉल्व हो गया। माइंड, माइंड अभी इधर उधर जाएगा, उसको बोलेंगे इधर आ और ये मंत्र कोई सुन, ठीक है। तो कितना इंद्रिय हमारा इन्वॉल्व हो गया इसमें? 5। तो इसीलिए देखिए दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस टू कंट्रोल द माइंड इन दिस कलियुग, ठीक है। तो हम लोग 8 बार चैंटिंग करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। एवरीवन विल चैंट विथ मी, ठीक है। हम लोग साथ में ही चैंटिंग करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा साथ में, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कैसा लगा आपको? हाँ हरे कृष्णा। हाँ अभी तो इतना सीख दे दिया। ठीक है। तो देखिए पहला चीज है हमेशा जो, जैसे मान लीजिए आज जो योगा डे है और योगा में हमेशा योग का मीनिंग है कनेक्शन, ठीक है। हमेशा देखिए व्यक्ति ना किसी के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, ठीक है। किसी के साथ कनेक्टेड रहिए। तो मेरे जीवन में अगर मैं आपको बताऊंगा हमेशा कृष्ण के साथ कनेक्टेड रहिए। जैसे मान लीजिए मुंबई का जब ट्रेन होता है ना, मेट्रो ट्रेन होता है ना, मेट्रो में अगर कोई जाना चाहते हैं तो जाके स्टेशन में बस खड़ा हो जाना चाहिए, उसके बाद अंदर में जाना और स्टेशन होने के बाद आपको बाहर निकालना वो लोगों का काम होता है। तो ऐसे ही बस आप भगवान के साथ कनेक्टेड रहिए और आपका जो ड्यूटी है आप करते रहिए, भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। पहला चीज है कनेक्शन। उसके बाद हमेशा ट्राई करिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और तीसरा चीज है हमेशा लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए। एटलीस्ट रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि बस प्रणाम करना, ये करना, वो करना। हमेशा लोगों को जैसे हैं उसके हिसाब से उनको एक्सेप्ट करिए, उनका जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जो भी है उसके हिसाब से उनको एक्सेप्ट करिए, उनको समझिए, तो ये फिर आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस। मम्मी पापा हमारे लिए कुछ और चाहते हैं, लाइक मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कुछ और चाहते हैं, पर मेरा मन कहीं और है, वो मान नहीं रहे, तो कैसे मनाएं? ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कितना बच्चों को प्रश्न है कि आपका मन में कुछ हल चल रहा है और मम्मी पापा और कुछ सोच रहे? अच्छा ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं ऐसे लाल कपड़ा पहन के बैठूं,
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैं मतलब बेंगलोर में था, 10 साल का आईटी इंडस्ट्री में रहा, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में रह के आया। तो लास्ट टाइम भी पिता माता काफी खुश थे, पैकेज भी बहुत अच्छा था। तो उसके बाद मैं जब छोड़ के आया, मेरा पिता माता काफी खुश थे, इसको लेके मंदिर में छोड़ दो यार। ऐसे कभी हुआ होगा? नहीं। तो देखिए, जीवन में अगर आप जो चाहते हैं करने के लिए आपका इंटरेस्ट है, तो हमेशा देखिए स्टिक होकर रहिए वही डिसीजन में, हमेशा स्टिक होकर रहिए। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि मम्मी पापा को डांट दो, गाली करो, ऐसा नहीं। आप बस वो पॉइंट में स्टिक होकर रहिए, तो उसके साथ साथ एक टाइम के बाद मम्मी पापा एक्सेप्ट करते ही हैं। अगर जीवन में कुछ करना है तो हमेशा आपके डिसीजन में स्टिक होकर रहिए, ठीक है? आपके डिसीजन में आप अगर स्टिक होकर रहेंगे तो फिर कोई संसार का कोई व्यक्ति नहीं है आपको डेविएट कर सकते, ठीक है? कौन स्टिक होकर रहना चाहिए? खुद अगर स्टिक होकर रहेंगे तो फिर अच्छा कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम मम्मी पापा को कन्विंस करना स्टार्ट करिए। हमेशा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है ना, हम एक्चुअली बात ठीक से नहीं कर पाते, हमारा जो पॉइंट है ना हम ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, बच्चे ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो उनको जबरदस्ती उनको फिर क्या करते हैं कि ये करो ये करो वो करो करके कर देते हैं, और हमेशा हम रोते रहते कि एक्चुअली मैं ये क्यों कर लिया, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और हमेशा मैं एक चीज बोल के जाऊंगा, आपका जो इंटरेस्ट है आप वही करिए। अगर जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो कि आपका जो इंटरेस्ट है आप वही करिए, आप उसको प्रॉपरली एनालिसिस करिए, मैं जो चीज कर रहा हूँ सही से अच्छा है कि नहीं है, और मम्मी पापा को लगातार बेसिस पे कन्विंस करते रहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि डांटो मत, है आप लोग क्या पढ़ाई किया, आपको क्या पता है, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मुझे जितना पता है आपको क्या पता है, ऐसे मत बोलिए। धीरे धीरे कन्विंस करना स्टार्ट करिए और स्टिक होकर रहिए, ठीक है? यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, रुकिए, यस, हाँ ओके, ठीक है। उनका प्रश्न है कि हम लोग हमेशा कैसे सुख और दुख में हमेशा स्टेडी रह सकते हैं, ठीक है? मतलब एग्जाम में फेल भी हो गए ज्यादा दुख नहीं है, और टप्पर भी हो गए ज्यादा सुख नहीं है, ऐसा ना? तो देखिए, ये चीज को प्राप्त होने के लिए काफी टाइम लगेगा, ये एक दिन का बात नहीं है, सही है ना? तो ये जो प्रोसेस है ना, आप जब जिंदगी का जो एम है, जीवन का जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है कि समाज को मतलब सेवा देना, खुद को प्यूरिफाई करना है और समाज को सेवा देना। जैसे मान लीजिए कोई अगर आईएएस ऑफिसर भी बन जाएंगे, उसके हिसाब से सेवा करेंगे। अगर आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, सेवा करेंगे, तो सेवा करने से कोई रोक पाएगा क्या? तो फिर सक्सेस फेलियर ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, कभी कभी सेवा तो देंगे लेकिन आईएएस ऑफिसर बन के सेवा देंगे। ये जो आसक्ति है ना, ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जब हमको ज्ञान मिल जाएगा तो उसके बेसिस पे फिर इस चीज को हम लोग को कंट्रोल करना आसान होता है। लेकिन दिस इज ऑल्सो टाइम टेकिंग प्रोसेस, दिस इज नॉट ए वन डे प्रोसेस, ठीक है? यस, हाँ सर, अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मतलब उसने बोला था कि उतना मन गाइड करना सम्मान क्या हमारे लाइफ में एम होना चाहिए कि हमें कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए, मतलब परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। और उन्होंने बोला था कि इसके लिए हमें मतलब हमारे कर्म है वो समान, मतलब नॉट लोग और मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों समान रहने चाहिए। अगर हम समाज के भले के अच्छे काम करेंगे तो हमें तो उस कर्म को भोगना पड़ेगा ना, तो इसका ठीक है। उनका प्रश्न है कि कृष्णा ने कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो का इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण है कि नहीं? परमात्मा के हिसाब से भगवान सबके अंदर है ना। तो जब सबके अंदर है, सबके लिए भलाई करना ही कृष्ण के लिए काम करना, सही है ना? मतलब सबके लिए भलाई करना ही कृष्ण के लिए काम है, सही है कि नहीं? तो उस हिसाब से अगर काम करेंगे तो समाज का भी भलाई होगा और एट द एंड आप लोग कृष्ण को ही प्राप्त होंगे, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, जय श्री राम गुरुजी। यस सर, रुके
उनका प्रश्न में हम ये क्यों हंस रहे हैं? ठीक है, ये ठीक है। सर ये गुरुजी लोग और जो मेडिटेशन में ज्यादा मानते हैं वो ऑरेंज कलर का ड्रेस क्यों पहनते हैं? क्या सर जो गुरुजी लोग और जो मेडिटेशन को ज्यादा मानते हैं हाँ, उन्हें मैंने देखा है ज्यादातर ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनते हैं। ठीक है। उनका प्रश्न है कि आप लोग ऑरेंज पहन के क्यों आ रहे हैं? ठीक है, आपको अगर चाहिए भी हम देंगे आगे जाके। तो ये ऑरेंज पहनते हैं, जैसे देखिए आपके स्कूल के बच्चे, आपका एक ड्रेस कोड रहता है ना, तो इस टाइप का जो साधु संत लोग हैं तो ऑरेंज पहनते हैं इसीलिए कि समाज के लिए सेवा करने के लिए। ठीक है, समाज का जो सेवा करते हैं, प्यूरिटी में रहते हैं, भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हैं, स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, तो ये है उनका ड्रेस कोड। ठीक है,